you all. First of all, thank you so much for lovely messages I receive. Although यहाँ पे कुछ subscriber में ऐसा कुछ बढ़ नहीं रहा है, but it feels very good. It feels I am making some change, something. So a lot of people pointed out that मेरे vlogs में मैं खुद ही नहीं दिखती हूँ. So yes, that's tricky. And how it gets tricky क्योंकि वीडियो मैं ही बना रही होती हूँ. It's very difficult for me to even shoot some videos. So those are just bits and pieces I generally make and then voice over and all those things. तो मुझे कैसे देखोगे? Who will make my video? If husband makes my video, who will take care of our kids? So maybe one day I will be richer and very successful. I will hire somebody to roam around with camera behind me all the time. You will see lot of vlogs then. I promise. Okay, एक दिन हम होंगे कामयाब. So anyway, I decided to do this Q&A because a lot of people told me they like me giving opinions. Can you believe this? Because girls are not supposed to give opinions apparently, like how most people see. After my marriage I heard this thing constantly from my mother-in-law कि अरे उनके यहाँ पे बहू आई है, उस वो तो बिल्कुल गाय जैसी है, उसके मुंह में जबान ही नहीं है, उसके मुंह में जबान ही नहीं है. एंड मतलब मुझे लगा वो नॉर्मल बता रही है. आई वॉज डम दैट वे. एंड it took me some years to realize कि she was taunting me every time she was saying कि किसी की बहू के मुंह में जबान नहीं है. She was taunting me कि तुम्हारी जबान बहुत चलती है. तो nobody likes opinion, but you people do. You are the best. So here I have Q&A question, sorry, and I'm going to give you answers. Let's see. Which course did you pursue in college? I did B.Ed, so I am a teacher. I'm going to teach you all. Okay. So not that it's benefiting me anyway, but maybe it did actually. I at some point of my life I had stage fright. Now not so anymore, and I was not comfortable on camera at all. But slowly I'm realizing maybe I am. So it's all the credit goes to this course because obviously इसका essence क्या है? सबके सामने जाके पढ़ाना है ना. Okay. Do you believe in numerology or astrology? न्यूमरोलॉजी का तो मुझे कुछ आता ही नहीं है. आई डोंट नो व्हाट इट इज़. एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा थोड़ा मुझे विश्वास नहीं बोलेंगे, इंटरेस्ट आने लग गया है. द अदर डे आई वॉज टेलिंग माई हस्बैंड देर इज समथिंग गन, मतलब यू आर बोर्न इन सर्टेन गन, और 3 ही गन होते हैं, मानव, देव और राक्षस. तो आई वॉज टेलिंग माई हस्बैंड कि यार यू आर ऑल्सो देव बाय गन एंड आई एम ऑल्सो देव, तो मे बी दैट्स वाई वी आर काइंड हार्टेड पीपल एंड ये वो. एंड देन समबडी हु हैज़ डन रॉन्ग विद अस, तो मैंने उसका सर्च किया और उसका राक्षस था. एंड आई वाज लाइक सी, इसका राक्षस है तो ये तो ऑब्वियसली इसको बुरा करना ही था हमारे साथ. तो ये एस्ट्रोलॉजी मैं यूज़ कर रही हूँ टू मेक माई सेल्फ फील बेटर. ओके, सो हियर वी आर. इज इट ऑन? ये मेरे बच्चों ने तोड़ दिया है, सो देयर इज अ थ्रेड ऑन इट. यस, आई एम confused that way. I'm not gonna buy another one. No, it's working anyway. So किसी ने लिखा है पोस्ट कुकिंग वीडियो लव फॉर तारा का. मैंने बोला था क्वेश्चंस पूछो, ठीक है, तो मैं इनका आंसर नहीं देने वाली हूँ. बट यस, थैंक्स फॉर द सजेशन, आई विल. बट ये इस टाइप की चीज़ें मैं अब अवॉइड करूँगी इसमें. आई विल ओनली टेक क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज स्ट्रिक्टली अ Q&A. नेक्स्ट टाइम मे बी दोज कॉम्प्लीमेंट्स एंड आइडियाज. थैंक यू सो मच. बुरा मत मानना कोई भी. Okay. Somebody asked me gloomiest day of your life before marriage and after. Before marriage, if I have to pick, is the day of my marriage, a night before. So it's a love marriage. Love marriage के जो लफड़े होते हैं वो साथ में ही आते हैं. So I remember I cried for 5 hours straight and my eyes were all swollen and puffy the day of my marriage because I had such a rough day and I had fight with my parents, my mother and whatnot. So will not go in details. It was very bad. And then I dedicatedly did not talk to my mom for like 6 months after my marriage because she gave me that very bad day just a day before my marriage. Although वो शादी वाले दिन बात करी, that's very sweet of our Indian mothers. They think they can do anything and we are supposed to get over in like few hours. So that is a gloomy stay before marriage. After marriage there have been lot many. My whole life after marriage is
traumatic. I can write a book on it. So if you people feel and see lot of videos and photos on my feed and think कि wow इसकी life कितनी अच्छी है, we also want this life, तो please there's another side of it. There are a lot of heartbreaks, lot of hard decisions we had to took and endure a lot of pain to in order to make this thing work. So I know grass is greener on the other side, and obviously I won't share those kind of things because if I share, people will say, "Oh, she's crying for attention." So anyway, अगर मुझे pick करना हो तो maybe there was somebody, some relative, a family, not relative, I would not say family, certain family, whom I love dearly from my heart, bottom of my heart. I loved this person, but this person loved me after an argument, uh, threatened to kill me, said a very mean thing about my daughter, and I never saw this person again in my life. So and it it was gloomist and heartbreaking and traumatic for me, because for a very long period of time I couldn't get over it, because I am a very sensitive person and I was in that space ki how can somebody say such kind of thing. How can, like, you, if you have an argument, a change of opinions, you fight, but you don't say heartbreaking stuff. And on the top of it, there were some people present there, also family. They did not say anything. They did not even say कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो. They did not even say कि how dare you to say something like this to her. And I realized कि maybe I was never part of this. I was not the family. So that is the gloomiest day of my life, because it gave me years of trauma and 2 years of therapy and whatnot. So yes, still the gloomiest. uh, फिर उसके बाद, how did you know your husband was the one dating someone from the forces? So I tell my husband a lot of times, and I'm gonna tell you today, if I had known what life enforces and the life that comes with him, if you marry a guy from force, I would not have married him. I tell him all the time, मेरी family में कोई नहीं है. I had no idea like how it's gonna happen, what are things and other stuff, lot of sacrifices which I am supposed to make, जो कि बाहर लोगों को पता भी नहीं होते हैं कि ये चीज़ें भी करनी पड़ती है. Obviously आप like, if I had married a doctor, मैं थोड़े ना 2-2 साल में अपना घर पैक कर रही होती, राइट. मैं थोड़ा ना सेपरेशन एंजाइटी हो रही होती है मुझको, मुझे थोड़ा ना सिंगल पेरेंटिंग कर रही होती, या फिर मुझे अकेले में वो लॉन्ग डिस्टेंस वाली शादी में रहना होता, ऑल दोज थिंग्स. तो आई टेल हिम ऑल द टाइम, मुझे पता हो तो मैं शादी नहीं करती, बट हाउ डिड आई नो, बिकॉज वी बोथ आर वियर्ड इन आवर ओन वे. आई टॉक अ लॉट एंड ही लिसन अ लॉट. मे बी दैट वर्कड आउट well for us. So next, how to convince parents for an intercaste marriage, any major tips? We did not try much. हमारे लिए it worked, but my suggestion to you all, don't be a gold digger, but मतलब एक लेवल में शादी होनी चाहिए. यू शुड नो कि हाँ आप साथ में ज़िंदगी चला लोगे. इट्स नॉट रिगार्डिंग द गाय ऑल्सो कि अगर लड़का अच्छा नहीं कमा रहा है, इफ़ यू कैन अर्न वेल तो ठीक है. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर गेटिंग मैरिड एंड उसके बाद पेरेंट्स सेज टोल्ड यू सो. समझ रहे हो? तो इतना होना चाहिए. अगर इस लायक होगा तो शायद पेरेंट्स मान जाते हैं. लाइक आई गेस 50% पेरेंट्स सेज येस इफ यू आर इकोनॉमिकली डूइंग वेल एंड साउंड, एंड उसके बाद की अंडरस्टैंडिंग तो आपकी खुद की है. एंड पेरेंट्स डोंट गिव शिट अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग. दे आर ओनली वरिड अबाउट इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल स्टफ. उसके अलावा घंटा फर्क नहीं पड़ता 80% पेरेंट्स को. इसीलिए इतनी अरेंज मैरिजेस भी फेल होती हैं, बिकॉज पीपल ओनली लुक फॉर दिस मटेरियलिस्टिक स्टफ, विच इज़ रॉन्ग दो. बट पेरेंट्स को कन्विंस करने का यही तरीका है. ओके, व्हाट इज योर हाइट? क्या करोगे यार मेरी हाइट जान के? आई एम ओनली 5. I'm like a cute tiny little button and I'm very happy. Once upon a time I had this insecurity and I used to feel that I am like very small, very short, I don't look good, I'm very petite. But now I feel very good. It's actually a compliment now that I am a petite. Will you ever go to your in-laws house? यार इनका नाम है खुशबू. खुशबू तुम ये बताओ यार, तुम्हें पैसे वैसे मिलते हैं क्या ऐसी चीजें लिखने के? हाँ, तुम्हें क्या इंटरेस्ट है? तुम्हें क्यों जानना है मेरी बहन? हाँ, इन लॉज हो तो इन लॉज के घर जाऊँ ना, मेरे इन लॉज है ही नहीं. अब बताओ यार, तुम कहाँ किसी और के घर पे जाके बैठ जाओ? तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम इन लॉज के साथ रहो, तुम्हें ज्यादा पसंद आ रहा है तो. और अगर तुम्हारी शादी नहीं, शादी का वेट करो, फिर मैं तुमसे पूछती हूँ. ओके, इन कंफ्यूजन वेदर टू हैव अनदर बेबी और नॉट, आई एम नॉट गोना
गिव यू एनी सजेशन, बट अपना फाइनेंस, अपने पति की राय, अपनी फैमिली का सपोर्ट, अपनी बॉडी का सपोर्ट, अपनी मेंटल हेल्थ का सपोर्ट, ये सब देख के प्रोज एंड कॉन्स लिख के तभी डिसाइड करना कि करना है कि नहीं करना है, बिकॉज कंसीविंग इज द इजीस्ट पार्ट एंड इवन कीपिंग द बेबी इन योर टमी, लाइक प्रेगनेंसी इज वेरी इजी, है ना। उसके बाद जो होती है ना असली महाभारत, वहां से शुरू होती है, दैट इज वेरी हार्ड। तो वो सब देख के सोच के करना। उसके बाद somebody wrote शेयर सारे रिलेटेड कंटेंट, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन, लेकिन ये सब मैं अब अवॉइड करूंगी आगे से। आई विल ओनली टेक क्वेश्चंस। हाउ डिड यू लूज योर mommy pooch? You look very healthy and fit, kindly share your secret. First of all, I might be fit because of my DNA genes. My mother is very petite and very thin, so maybe that's why I am. Secondly, I do a lot of chores. I go for 30 minutes walk, or maybe I try to. On most days I go. उसके अलावा पूरे दिन मैं घर में भागती रहती हूँ. I'm not able to make videos. Why? Because I'm always running around my house. तो समझ रहे हो, मे बी दैट हेल्प्स। और उसके बाद हेल्दी, हेल्दी मैं बिल्कुल नहीं हूँ यार, ट्रस्ट मी, कोई नहीं है। औरतों की जिंदगी सबकी झंडू है, कोई हेल्दी नहीं है, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ इश्यूज आई हैव। फॉर स्टार्टर्स आई हैव PCS, pelvic congestion syndrome, you can check it on Google. तो because of that I have actually very hard time to वो ना, especially during my menstruation cycle, very difficult time। तो कुछ नहीं कह सकते हैं, यू आर जस्ट अच्छा भला वन डे एंड द सेकेंड डे यू आर सिक। तो आफ्टर किड्स यू आर नेवर यंग अगेन, दिस व्हाट आई हैव लर्न। ओके, फिर किसी ने लिखा है, is there any possibility that I get to see you and share life experiences in whiskey? Yes, sure, as this is my favorite drink, maybe we will. I'm gonna share one funny thing. Somebody on Instagram shared it one day कि मैंने ना सपना देखा कि we were neighbors and we were having so much fun. Okay, and in a month her husband got posted here, and अब हम पड़ोसी हैं, and we are not actually having so much fun. Like we meet casually, हम बात भी करते हैं, सब कुछ है, but it's not like we are partying every day. तो कभी कभी इंटरनेट पे जो देख के लगता है वो होता नहीं है। इवन आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, तो हम मिलते हैं, शी इज़ वेरी नाइस, आई एम, मतलब वी आर लाइक फ्रेंड्स, बट ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के घर पे जा रहे हैं वो कर रहे हैं, बिकॉज शी इज़ बिजी विद हर किड्स, आई एम बिजी विद माइन किड। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर वो है ना मेरे साथ रहने का सपना देखने की बजाय 2-3 करोड़ रुपए मांग लेती, दैट वुड हैव बीन मच बेटर। सो यू ऑल्सो थिंक अबाउट इट। उसके अलावा आप दो बच्चों के साथ सब कुछ कैसे मैनेज करते हो? कभी कभी अगर गुस्सा बच्चों की एक्टिविटीज़ पे, शायद ये ऐसा लिखना चाह रही है कि बच्चों पे अगर गुस्सा आता है तो हाउ डू यू मैनेज, एंड दो बच्चों के साथ कैसे मैनेज करते हो? मैनेज सब हो जाता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ट्रस्ट मी। विद माई सेकेंड प्रेगनेंसी आई डिड नॉट even have a home. I I lived out of 2 suitcases, quarter constantly changed places. I had to go for a scan every week because there was some high risk pregnancy, and I had to take care of my 2-year-old also. सब हो गया। लास्ट में मुझे बोला गया था बेड रेस्ट करो लास्ट के 1 मंथ में, और मैंने कोई बेड रेस्ट नहीं किया, मैं उस टाइम पे घर सेट कर रही थी अपना, क्योंकि मुझे क्वार्टर तभी मिला था। तो वो भी हो गया। पूरे मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती थी, खड़ा नहीं हुआ जाता था, बट आई डिड इट ऑल अलोन विदाउट एनी हेल्प। तो जब वो टाइम निकल गया तो ये तो क्या ही टाइम है, ठीक है मेरे बच्चे मुझे ही पालने हैं, और कौन पालेगा? एंड ऑल्सो आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी विद माई किड्स। तो डेट शुड आंसर योर क्वेश्चन। सेकेंडली, आप गुस्सा करते हो, गुस्सा सब करते हैं, सबको आता है, हम इंडियन मॉम से, हमारे खून में है गुस्सा करना, तो इट्स ओके। बट यू शुड बी, मतलब गुस्सा आता है, मैं चिल्ला भी देती हूँ कई बार, सॉरी भी बोल देती हूँ बच्चों को, तो आई फील, फिर मुझे गिल्ट फील होता है, और मेरे साथ प्रॉब्लम है कि अगर मैं बच्चों पर चिल्ला देती हूँ मेरी खुद की तबीयत खराब हो जाती है फिर। तो अगर मैं बच्चों पर चिल्लाती हूँ, एंड इफ माई हस्बैंड इज एट होम, तो यू ऑलवेज मेक श्योर कि तुम कमरे में जाओ, मैं इनको देखता हूँ, मैं इनको प्लीज 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 गो इनसाइड, बिकॉज ही नोज कि उसके बाद मेरी तबीयत खराब होगी, देन ही हैव टू टेक केयर ऑफ मी, ही विल हैव टू। तो बेसिक तबीयत खराब होती है, मुझे सर दर्द होने लगता है, मुझे गिल्ट से ऐसे एनजाइटी होने लगती है, आई एम वेरी एनजाइटी प्रोन पर्सन। ओके, चलो। Post pregnancy hair fall, when it stop after 8-9 months, it's supposed to stop maybe in a year when your hormones shift back, so not a lot of people are aware। लेकिन आप जब प्रेग्नेंट होते हो तो आपका हेयर फॉल बहुत कम होता है, यू कैन गूगल इट।
कोई ऐसा उल्टा सीधा मैं अफवाह नहीं उड़ा रही हूँ, यू कैन गूगल इट, आपका हेयर फॉल कम होता है, लेकिन उस टाइम पे हम ध्यान नहीं देते हैं, ऑफ कोर्स वी आर बिजी विद प्रेगनेंसी एंड अदर स्टफ। तो जब व्हेन यू हैव डिलीवर्ड द बेबी तो योर हार्मोन शिफ्ट बैक, एंड इसके ही वजह से हमारा जो पहले भी हेयर फॉल नहीं हुआ था वो सब एक साथ हो रहा होता है, और बिकॉज हार्मोन शिफ्ट बैक हो रहे हैं इसलिए भी ज्यादा होता है। तो इट्स ओके, इट्स नॉट लाइक आप गंजे हो जाओगे, दुनिया में कोई गंजा नहीं हुआ है बच्चे पैदा करने के बाद। तो 8-10 महीने में ठीक हो जाना चाहिए। इफ़ यू आर फीलिंग वेरी बैड तो गेट अ हेयर कट, आई डिड द सेम, आई गॉट अ हेयर कट, और मैं जनरली पोनी वोनी बना के रखती थी, बाकी हेयर मसाज वगैरह करते रहा करो, इट्स एनीवे गुड। अब तो अंग्रेज भी कर रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज हाउ टू मेंटेन द फिगर, बता ही दिया वो मैंने। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा बेली फैट नहीं है, बट आई डू हैव बेली फैट। जब मैं बहुत ऐसी ड्रेसेस पहनती हूँ बॉडी कॉन टाइप, तो आई वियर शेप वियर, और जब मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ तो उसमें तो दिखेगा ही क्या, बिकॉज फायदा ऑफ बीइंग petite एंड लिटिल, तो वो लोगों को लगता है पतली ही है, लेकिन मैं नहीं होती हूँ, नहीं हूँ, मुझे है एक मुंह में पूरा अच्छा सा बना हुआ है। ओके, उसके बाद what to do if husband think I am lying and his mother is not। सबसे इजी और आजकल जो मार्केट में चल रहा है वो है कि आप उनकी रिकॉर्डिंग करके सुनाओ। अ, मैंने नहीं किया है लेकिन आई हैव सीन पीपल डूइंग इट एंड आई सी ठीक है, बुराई क्या है जब सामने वाला झूठ बोल रहा है, आप तो खाली रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना टू प्रूव योर इनोसेंस, तो इसमें गलत क्या है? कोर्ट में भी लोग अपने सबूत देते हैं ना, तो इट्स ओके। एंड मे बी ट्राई टू विन योर हस्बैंड्स ट्रस्ट फर्स्ट, और उसके बाद वो बाकी सब खुद ही देख लेगा यार। यू आर नॉट सपोज टू से कि ये तुम्हारी मम्मी ऐसी है वैसी है वैसी है, जो जैसा होता है वो उसको दिख ही जाता है। जो बुरा होगा वो बुरा ही रहेगा, चाहे 100 परतें अपने ऊपर लगा के आए। अंडरस्टूड? तो इफ किसी की माँ बुरी है तो समय लगेगा देखने में, क्योंकि वो उसकी माँ है, अपनी माँ कभी किसी को बुरी नहीं लगती है, सच बात है, लगनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो अपने ही खुद के बेटे के साथ गलत कर रही है, विच लॉट ऑफ वुमेन डू, दे हेट देयर डॉटर इन लॉ सो मच कि वो अपने बेटे की सास बन जाती है। तो जब ये औरत अपने बेटे की सास बनती है ना, तो इनके बेटे भी इनकी इनके बेटे बनते हैं, फिर इनकी धीरे धीरे बहू बनते हैं, और इनको पता चल जाता है कि भाई ये गलत है। और जब वो गलत प्रूफ हो जाती हैं तो वो अपना घर ही तोड़ लेती हैं, एंड that's how it gets like that's how it's happening in the society. Lot of people are like picking nuclear families, don't want to live with their in-laws and all because of this। तो ठीक है यार, your husband is an adult, you are not supposed to influence him in any way, let him see on his own and let him pick and let him decide। बट हाँ, अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए डू गिव इट अ ट्राई। ओके, अब मैं लोगों के घरों में आग भी लगा रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, सो नेक्स्ट इज figure relationship tip is the ultimate is there should be no gap in your communication, you should always be honest to each other, never hide anything from each other। this I follow, uh, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं गिफ्ट भी बता देती हूँ। यस, हम बिल्कुल छुपाते ही नहीं, हम कोई सरप्राइज नहीं देते एक दूसरे को, हम सब कुछ बताते हैं। तो इवन सम गॉसिप, सम रैंडम गॉसिप जिससे मेरे पति को कोई मतलब नहीं है, एंड ही इज लाइक इसका मैं क्या करूँ, व्हाट आई एम सपोज टू डू विद दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं तब भी बताती हूँ। शो ऑल ऑफ योर फ्रेम अगेन, क्वेश्चंस बोला था, नेक्स्ट टाइम इफ यू आर डूइंग इट प्लीज मेक इट इंटरेस्टिंग, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछना यार, वही नहीं सास बहू ये वो। सास बहू वाले पूछ सकते हो, लेकिन अपने वाले मेरे से मत लेना है, मेरी कोई सास वास नहीं है, ठीक है? मेरा हो गया है, मेरा नरक कट चुका है, तुम अपना देख लो। उसके बाद क्वालिफिकेशन, फिट, यही सब आ रहा है सेम। तो फिर किसी ने पूछा हाउ टू रिड्यूस चेस्ट साइज पोस्टपार्टम, एनी टिप्स? by feeding your baby, if you feed your baby and when you stop feeding after an year maybe, उतना टाइम तो फीड कराना ही कराना चाहिए, और खुद ही होने लगता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज जस्ट प्योर नेचर। तो जस्ट डू इट। एंड अभी मुझे लगता है लॉट ऑफ आई एम लाइक, इससे अलग मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का यही है पोस्टपार्टम एंड ऑल, बिकॉज आई एम अ मदर, तो लॉट ऑफ न्यू मदर्स कम टू मी टू आस्क दीज क्वेश्चंस। लेट मी मेक वन थिंग क्लियर टू यू कि इफ आप बच्चा पैदा करने के बाद इस चीज़ के लिए वरीड हो कि हाउ यू आर लुकिंग, हाउ फैट यू आर बिकम, तो ठीक है, यू आर नॉट द वन। बहुत बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैंने भी सोचा होगा कि मैं मोटी दिख रही हूँ, बट यू शुड नॉट, यू हैव गिवन बर्थ, यू ब्रॉट वन लाइफ इन दिस वर्ल्ड, तो वाई शुड यू बी वरीड कि आप कैसे दिख रहे हो? यू आर लुकिंग गुड, गुड इनफ, जस्ट
be focus to be a good mother, be there for your child and take good केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज साथ में आपकी बॉडी आपका साथ देगी बुढ़ापे तक, ये शक्ल नहीं देगी, ठीक है। और 1 साल के बाद आप ट्राई कर सकते हो वर्कआउट वगैरह, 6 महीने के बाद भी कर सकते हो। तो उससे पहले तो आई फील डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ, ईट वेल, टेक रेस्ट। मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाई थी, इसीलिए बता रही हूँ, करना चाहिए। ओके, उसके बाद आपके व्लॉग्स किसी के लिए थेरेपी हैं। थैंक यू सो मच, इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। और उसके अलावा मैं देख रही हूँ ज़्यादातर एक जैसे हैं, तो आई वोंट बी टेकिंग दोज क्वेश्चंस। सो सॉरी इफ आई स्किप्ड योर्स बिकॉज आई टुक सम स्क्रीनशॉट हियर एंड कुछ कुछ उसमें मिस हो रहा है, तो आई एम सो सॉरी। बाकी दिस कॉम्प्लीमेंट आई एम अगेन गोना रीड बिकॉज इट मेड मी फील सो हैप्पी। आपके व्लॉग्स किसी के लिए थेरेपी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। सो आई विल बी looking forward for beautiful comments. Make sure you do it right there, and so that I can do it again, I get courage to do it again. Otherwise I'm very camera shy person, I'm telling you, I'm very camera shy. My kids are locked in one room, my husband is sleeping in other, and there is nobody at home, and that's why I was able to do it. Otherwise मुझे ऐसा लगने लगता है कि somebody is looking. तो maybe I get more courage along the road. So thank you so much. That is all. This is all the Q&A. Next time, please make it interesting. Give me gossip. Tell me anything and we will talk about it. Okay. Bye bye. Thank you. Thank you so much.